जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 366th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today being Sunday, we are going to discuss the weekly analysis of Nifty BankNifty stocks, commodities, cryptocurrency, Forex. So welcome. Good evening, namaskar, good evening. Hello. Good evening. SpaceX launching type music today. Jai Mata Di. All right. So what is happening in the crypto space today is this Sunday. So even on weekends, the crypto markets work. So the Bitcoin is trading as per expectation. Few days back, I think on Thursday, I gave the short trade over here, near the 39,500 area, and the stop loss was just above 40,500. If you remember, we had explained this situation. आपको याद होगा तो इस दिन 3 तारीख को, I think that was Thursday night. Yeah. So on Thursday night, we discussed that when Bitcoin comes near the 37,000 mark, there is a very good trend line support, and from here it should go. And if you want to take a long trade, you can take a long trade with some small stop loss, not much. And this should be the last up move, which should take Bitcoin towards 39,500 or maybe max 40,000. From there, the short trade will be initiated and the targets will be 35,000 and 33,000. So what has happened is that Bitcoin has made the high near 39,500, and since then it crashed. It has crashed towards 35,000 and 34,750. Now Bitcoin is trading just at the resistance of this channel, and it is very crucial moment for Bitcoin right now, because on higher time frames there is a bearish moving average crossover happening near the 39,400 level, and there is not much of a follow through as of now on the downside. So considering both the situation, if you are a short trader in Bitcoin, right now it is trading at 36,250. Try to keep a maximum stop loss of 38,000. So if 38,000 is protected, and if we start to see a move below the 35,500 area, which is this bottom over here, if we start to move below this, okay, then we should definitely again crack towards the 32,000 and 30,000 levels. Okay, so the trading plan is, if you want to short, try to short little higher near the 37,000, 37,500, etc., and don't give much of a stop loss. The stop loss should be 38,500 max. This should be the stop loss. And then if this trade works, the next target should be significantly down, and it should go towards 32,000, 30,000. These targets should come. Okay, so we can just flush through this bottom that was made on the 30th of May. Okay, so that is the trading plan for next 24 hours, and let us see how things pan out. 38,500, this is the stop loss for the fresh short trade. Try to take the short trade near 37,000 and 37,500, so that there is not much of a risk, and the risk to reward is very, very high. Okay, now similar situation is there in the Ethereum market. So Ethereum is last week, if you remember, I had said that maximum upside is capped at 30,000, sorry 3,030, 3030 का इसमें एक resistance मैंने दिया था, and short trade इसमें भी advise किया था. That short trade has worked. Now the good part about Ethereum is that it is relatively outperforming the BTC market. So that is why if you are trying to short, don't keep much of a stop loss. 2,900 should be the last to last stop loss for any kind of a short trade. Right now it's trading near 27.25. So if you want to short it near 2,800 or 2,850. Stop loss should be maximum 2,920, 2,900. And next round, if it starts to fall, then Ethereum will see a significant decline towards 2,150. So the target will be 2,150 on the Ethereum market.
Okay, now keep in mind that Ethereum is going to show a very solid move because it is very triangulated. It is trading at the apex part of the triangle, and very solid move is going to come in the Ethereum market. So it can be, on either side it can come, but going by the trend, the triangle is a continuation pattern, and this is the downtrend. So we should have one leg again on the lower side. But because the fall is already, price correction has already happened, try to keep stop loss on your short trade. Okay. So I think we have all the regular audience. Most of the people have joined. So let me go back towards the equity market. So what happened on Friday? Friday we saw the non-farm payroll data coming. That was good from the equity market perspective. And S&P 500 में 1% की रैली हुई. डाउ जोन्स जो है धीरे धीरे अपने हायर टारगेट्स की तरफ जा रहा है. 34,750, that is the level on the Dow Jones. Now the other European markets, they were also slightly in green. They were also bullish, and emerging market ETF, that was also 1% up. SGX Nifty was almost, I think, 70 to 80 points up. SGX Nifty has almost touched the 15,800 level. So everything was very good on Friday, and especially after the US market opened, we have seen nice moves in the global equity market. But again, यूएस मार्केट इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. 4200 के बारे में हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और अभी भी वो वहीं पे है लगभग. एंड नथिंग मच इज हैपनिंग. यूरोपियन मार्केट्स में भी कुछ खास हो नहीं रहा है. सो द व्यू विल रिमेन द सेम, दैट दीज मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू ऑफर एनी काइंड ऑफ क्यूज. जो भी है, हमें अपने ही बाजार से क्यूज निकालने होंगे. ओके. यूएस डॉलर में अगेन, जस्ट लाइक द May month NFP happened. मई महीने में भी यही चीज हुआ था, that the non-farm payroll data came, and on Thursday US dollar had bounced back, and on Friday when the data came, then the dollar was sold off. So similar यहाँ पे हमको देखने को मिली है, but I think US dollar should bounce back. Okay, so US dollar में एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो रहा है, एंड आई थिंक यूएस डॉलर शुड बाउंस बैक अगेन. एंड इस बार यूएस डॉलर बाउंस बैक करेगा तो इसमें आपको काफी स्ट्रॉन्ग रैली इसमें आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इट इज एट अ क्रिटिकल सपोर्ट. Now the euro and the British pound, they got some respite and they have moved on the higher side, but I think the euro is firmly bearish as of now. If I open the line chart, euro USD में डेफिनेटली बेरिशनेस है. सो यूरो जो है अगर बेरिश ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर को जो है थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. सो फॉरेक्स मार्केट में कुछ खास अपडेट नहीं है. एंड लेट अस डायरेक्टली कम टू दी निफ्टी. ओके, तो निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में क्या हुआ फ्राइडे को दोस्तों? एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट ओपन करते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे एंड हाउ द वीकली एंड डेली चार्ट्स आर शेपिंग अप. So on Friday, if you see, Nifty opened slightly gap up, and it tried to go towards the 15,725 level. Now this level was a very significant level, and if you have been watching my videos for last couple of days, मैंने आपको एडवांस में बताया था कि 15,725 ये जो लेवल है, यहाँ से एक फेड आएगा. How many people remember this? 15,725. This is the level which has been given in advance, that from here you will see one fade. Now that fade can be of 100 points, it can be of 200 points, it can be of 300 points, that we will see, but there will be one downside rejection from this level. So we corrected in a very simple ABC manner. This is the ABC correction, and whenever you have a ABC correction in a strong uptrend, what happens is it again goes back and tries to take out this high. Okay, it tries to take out this high. So a similar thing is expected to happen on Monday. We can either take out this high by a big margin, or just make a slightly newer high. So that we will discuss in detail कि आगे की क्या situation है. But Friday को हमारा mob level जो था वो ये था, and in first attempt it tried to hold the mob level, but second time में ये break हुआ, but again it defended the previous day bottom and no continuation was seen. Ideally, it should have come towards the 15,586. That would have been a good move, but again, bullish bazaar hai, and buyers have stepped in, and this market got saved. So we have closed at 15,670 on the spot, on the Nifty spot,
and the futures has closed at pretty good 30.35 points of premium. Now, if you look at the daily chart is still, unclear. It's a same candle like the 1st of June. But what is interesting is we are moving very close to the price and time cycle. So आपको याद होगा दोस्तों, तो 8 और 9 जून, 8th and 9th June, this is the price and time cycle coming up, and the minimum upside target for this bullish move on the higher side is 15,780, 15,780, which is the 1.27 fib extension of this entire decline. So that is the minimum target. लास्ट वीक हमने मॉब लेवल क्या दिया था? लास्ट वीक हमने दिया था 380 का मॉब लेवल, यानी 15,380, which is here. This was the mob level given by me in last week, and इसके ऊपर हमने दो टारगेट रखे थे, 15,580 and 15,780. So that second target is most likely to get completed in this week. Mostly it will be done on Monday or maybe on Wednesday. So whatever it is, we are approaching that price and time cycle, and whenever there is a price and time cycle, last time it was here, if you see, the price and time cycle was here and market saw very good decline. Last time before that it was here, and we saw the 21st December crack happening. So likewise, you can see these are the good time cycles where some short term top and bottoms are made, and this pattern is going on. So here the significance increases because this is a price and time both. So we can see some good reaction coming from these levels. So that is why, number one, we have to be very careful. Do not trade without stop loss, and do not be overly leveraged in this market. I'm telling you again and again, bazaar mein it is better to save than sorry. Do not be over leveraged. Okay, try to exit, try to book your profits whenever you are in good profits. So वीकली चार्ट में कोई भी वीकनेस नहीं है. वीकली चार्ट इज स्टिल वेरी वेरी हेल्दी, एंड देर इज नो वीकनेस एज ऑफ नाउ ऑन द वीकली चार्ट. नाउ गोइंग बाय द ओवरऑल, the monthly, weekly, and the daily combination, the only new piece of information that I can see is that on the 75-minute chart, we are first time we have started to see the negative divergence coming on the oscillators. Now this is something which is not a holy grail or something, but yes, if we are approaching that time cycle, price and time cycle, with a good negative divergence, then there is a good chance that whenever the next time it falls, it can show a good correction. Okay, now last time ये जो 500 पे जो bottom बना था अभी थोड़े दिन पहले, okay, that had a bullish hidden divergence. So this was the bullish hidden divergence. Whenever you have a good bullish hidden divergence in a strong trend, what happens is it goes on and make a quite significant new high, and after a positive bullish hidden divergence, the new highs are carrying a negative divergence. That is a preeminent top. That is a sign of a potential top in the making. Okay, so that is why we have to be careful going forward. Now what will be the weekly mob levels for this week? Let me discuss that. तो weekly जो आपका mob level होगा, that will be 15,585, which is this level over here. So let me just write it down. Weekly make or break level, weekly trend deciding level will be 15,585. Okay, and the first target on the upside will be this, the old target, which is 15,780, and second target will be 15,961, 15,961. These two targets are there on the upside. So till this market is not breaking below 15,585, market will remain on the bullish side, and there will be two targets which should be met. I am not sure about the second target, but yes, 780, this is something which we have been calling for last few days, and won't be any surprising, क्योंकि किसी भी एक पुराने हाई का एटलीस्ट 1.27 फिब एक्सटेंशन बनता ही है. ओके, दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल. तो निफ्टी में पुराने हाई का 1.27 comes at 15,780. सो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है.
अगर हम 585 के नीचे ट्रेड करते हैं, वंस वी स्टार्ट टू ट्रेड बिलो दिस, देन डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इनटू द एक्शन। एंड नीचे में पहला टारगेट होगा 15,375, 15,375 विच इज द लास्ट वीक मॉब लेवल। सो ये हमारा पहला टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट हमारा होगा 15,157, 15,157. Now the two crucial levels, okay, the two crucial levels for this market is your 15,780 on the upside and 15,375 on the downside. Option seller, option writers, okay, can utilize this range as the most important range for this week. Any move above this can invite 200 points additional move, and any move below this can invite 200 points below this. Okay, so your initial range going for the week is 15,780 on the upside and 15,375 on the downside. 200 points plus minus will be seen if we are breaking the this range. Okay, and we have to be very careful on 8th and 9th of June, 8th being your Tuesday, and generally Tuesdays के दिन जो है बाजार में आपको एक करेक्शन देखने को मिलती है, so we have to be very careful. All right, so that's all on the Nifty weekly analysis. Now what about tomorrow session? कल इंट्राडे किस तरीके से शेप अप करेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. Now going by the SGX Nifty, it is likely to open at a new high. Okay, so keep in mind one thing: if you are gapping up above the previous high, and I have said this many times before as well, if you are gapping up above previous high, that gap becomes a very crucial gap, that gap becomes a very significant gap. Until that gap is not breaking down, you should either remain on the long side or you should book your profits and remain on the sidelines. Okay, एंड इफ वी ब्रेक बिलो दैट गैप, अगर हम इस गैप को ब्रेक कर देते हैं तो फिर बाजार यू टर्न ले लेगा, मार्केट विल देन स्टार्ट टू गो डाउन. इफ यू सी व्हाट हैपेंड हियर, यू ओपनड विद अ गैप, okay, you could not sustain on the higher side, you broke below the gap, and then you saw a downside continuation. Correct? Again what happened, you opened with a gap, this was almost a new high with a gap up, and since then you have defended. Because you have defended, there is still a scope of a newer highs to be made, and that is why prices are going to make a new high. Understanding? So the logic of gap at new highs is very very significant, because this denotes trapped position. So if you are sustaining the gap, and if you are just maintaining sideways also, what will happen is that people who have shorted, they will start to feel the heat, and then their confidence goes down, and then they try to exit the position. And once their positions are exited, they are exhausted. At that time market starts to give some down move. ओके, सो कल बाजार में मॉब लेवल जो होगा दोस्तों, वो तो है आपका 15,661, विच इज जस्ट लाइक फ्राइडे. सो द मेक और ब्रेक लेवल, द ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल विल बी 15,660. फर्स्ट टारगेट विल बी 15,740. second target will be 15,780. Now we need to keep two things in mind, that the zone of 15,780 एंड 15,820, ये जो 40 पॉइंट्स है, यहां से बाजार में रिजेक्शन आना चाहिए. ओके, सो मार्केट शुड रिजेक्ट फ्रॉम दीज लेवल्स, एंड मार्केट शुड डिक्लाइन टुवर्ड्स द मॉब लेवल, दैट इज 15,660. प्रॉब्ली 15,600 का स्ट्राइक प्राइस टेस्ट हो सकता है. ओके, सो ये एक मूव जो है लगभग 180 पॉइंट्स या मे बी 200 पॉइंट्स, दिस इज वन मूव दैट शुड कम very very likely to happen for once at least. Okay, so if markets are reaching this level 780 to 820 इस जोन से जो है हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. छोटा मोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं. एंड लेट अस सी इफ वी गेट दिस मूव और नॉट. सो दिस कुड बी वन गुड ट्रेड. इफ यू ओपन फ्लैट, then that would mean there is some slack in the market, क्योंकि फ्राइडे की काफी अच्छी प्राइस एक्शन थी, ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी था. Okay, so if you open flat, then we have to be careful, I would say. And in that case, what is most likely to happen is market may go up, it may tease the high made on Friday, unable to sustain, and then it may fall towards 15,585, जहां पे आपका वीकली मॉब लेवल खड़ा है.
एंड ये अगर सेव हो गया, ये अगर डिफेंड हो गया, तो फिर एक और राइड इस तरीके से मिल सकता है. ओके, एंड इफ दिस इज नॉट सस्टेन, देन आप फिर टाटा बाय बाय, एंड अगेन वी आर गोइंग ऑन द लोअर साइड. Okay, so that is scenario number 2. Scenario number 3, if there is a gap down opening, because nobody is expecting gap down, so let us keep that thing also in mind. So if there is a gap down opening, that would again mean that market is bearish. But in that case, keep in mind that we need to trade below 15,585. We need to trade below, we need to hold below this gap area. तो जब तक इसके नीचे होगा, मार्केट विल बी बेरिश, एंड नीचे में हमारा टारगेट्स क्या होंगे? हमारा पहला टारगेट मॉब लेवल के नीचे होगा 15,580. लेट मी जस्ट राइट इट करेक्टली. 15,580 मॉब लेवल के नीचे होगा, एंड इफ वी ब्रेक बिलो 15,580, देन 15,460 becomes the first target. 15,460 becomes the first target, which is this. Okay, so in scenario number 3, if there is a gap down opening, then we have to break below 15,580, which is the weekly make or break level. Below this we will see one more decline. और अगर हम नीचे जाके ऊपर आते हैं तो आप समझ जाओ कि बाजार ने जो है नीचे एक और बेयर ट्रैप बनाया है, एंड देन अगेन इट इज गोइंग हायर, एंड दिस टाइम यू विल सी 15,780 से लेके 15,820 ये टारगेट्स आपको ऊपर में आ जाएंगे. ओके, सो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो. मैंने तीनों सिनारियोज आपको बता दिए हैं. आप इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे अपने भी चार्ट्स को आप बना सकते हो. कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से. इट इज वेरी सिंपल इन नेचर. So that's all on Nifty from my side. Now I will take Bank Nifty, and then we will move towards the stock segment. So if I open the Bank Nifty chart, one interesting observation, in fact two interesting observations are there on the Bank Nifty chart. Number one is there are two weekly candles with a below normal ATR. So there are two weekly candles with below normal trading range. So that means that this week there will be range expansion, very likely, because in Bank Nifty very rarely it happens that you have a 3 consecutive diminished range. Mostly the third one is the range expansion. So that is one interesting observation कि पिछले 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी का रेंज जो है काफी छोटा है. So इस वीक में बैंक निफ्टी की रेंज इंक्रीज होनी चाहिए. Now if you look at the monthly chart, there is one more observation. On the monthly chart, Bank Nifty is at a very crucial level. Okay, Bank Nifty is at a very crucial level because it is taking resistance just under this long-term support line, which is coming from the 2008 bottom. So if you see this chart, हमने Bank Nifty में all time high जो अभी create किया था, it was this support line where you can see the 2008 bear market was made, where the 2013 bear market was made, 2016 bear market was made, then 2019 good correction was there, and जिसके ब्रेक होने से कोविड की इतनी बड़ी गिरावट हुई थी. So we have taken resistance here, and since 5 months we are underneath this trend line since 5 months. So that shows the impact of the long term trend lines, क्योंकि अगर ये long term में इतने सालों तक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा. ओके, तो एक तो ये बात है कि आपका ये जो 36,000 का जो जोन है, ये कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है. एंड जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते, बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा. So that is why Bank Nifty is under some severe pressure. उसका reason है this trend line which was broken, and now we are trading underneath that trend line. So अगर आप इन दोनों thoughts को combine करते हो, monthly और weekly को अगर आप combine करते हो, तो क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि अगर हम we start to trade above the 36,000 level, then we have good room to run on the higher side. In that case Bank Nifty 1000 से 1500 पॉइंट जो है रैली कर सकता है. सो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है. इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है कि अगर हम 35,800 वगैरह 35,800 के ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप शॉर्ट साइड में प्ले कर रहे हो तो प्लीज मत प्ले करो, तुरंत निकल जाओ या हेजिंग करो. आई वुड स्ट्रिक्टली नॉट एडवोकेट कि इसके ऊपर जो है आप शॉर्ट साइड में रखो, बिकॉज द रीजन इज वेरी सेम. इट कैन स्पाइक अप ऑन दी हायर साइड. ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव कर रहे हैं, एंड हु नोज अगर
प्राइवेट बैंक्स वगैरह भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर देंगे तो 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है। हालांकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है बीच बीच में, बट स्टिल ओके, द margin of safety will not be with the shorter, it will be with the buyers, it will be with the long traders. So इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि वीकली मॉब लेवल क्या होगा बैंक निफ्टी में। सो वीकली अगर हम इस चार्ट को देखें तो ऑफ लेट क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, and whenever we have a white candle it is followed by a black candle. So nothing much is happening on the bank nifty, and recently जो फ्राइडे का कैंडल है that is a bearish engulfing candle. So bearish engulfing candle वैसे तो bearish in nature होता है, but अगर follow through नहीं आए तो it can become bullish, because that would mean that the sellers have done a bad job and sellers are totally absorbed by the buyer. Okay, सो इसीलिए इसमें व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थिंग इन बैंक निफ्टी कि इसमें आपको अगर 35,600 वगैरह के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, दैट वुड ओपन द रूम टू गो एंड रीटेस्ट दीज लेवल्स फ्रॉम वेयर द अर्लियर डिक्लाइन हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो इसके अंदर ताकत है कि ये यहाँ तक चेस कर सकता है। 36,800 विल बी डन. So what will be the weekly mob level? See, the weekly mob level will be 35,660, which is the opening level of Friday. So the weekly make or break level should be 35,660, okay, which is the highs of these three candles. इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। पहला टारगेट होगा 36,145 and second target will be your 36,600. ओके, फिलहाल इस वीक के लिए मैं इतना लेके चलूंगा एंड देन वी विल सी, क्योंकि ये एक मेजर सप्लाई जोन है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू टेक आउट दिस सप्लाई जोन सो इजीली. ओके, सो इट्स अ very strong resistance. Now on the downside, if we are unable to cross this resistance, what can happen is bank nifty should start to retest the recent breakout area which stands at 34,900. So बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो है एक अच्छा पुश आ सकता है 34,900. दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट 34,900 एंड बिलो दिस 34,100 का एक लेवल काफी सिग्निफिकेंट है. So two targets are there on the downside and two targets are there on the higher side. Everything will depend on how we negotiate, how we play at 35,660. इसके ऊपर it is all bulls and इसके नीचे bears have some chance, but they need to strike very very soon. अगर prices are going sideways, then आप समझ जाओ कि ये फिर resistance को weak कर रहा है and eventually the resistance will be taken out and we will go here. सो साइडवेज होने से कुछ नहीं होगा, साइडवेज होने से काम नहीं चलेगा. तो आप बेयर्स अगर साइडवेज मूव पे अगर होप रख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साइडवेज अगर आप चलाओगे तो ये वीक नहीं, ये स्ट्रांग हो जाएगा. सो दैट इज वन थिंग विच बेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट्स ऑल ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट फ्रॉम अ वीकली परस्पेक्टिव. कल के लिए कुछ लेवल्स में दे देता हूं कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका 35,532 ये जो आपका जोन है ये बहुत ही क्रूशल जोन है एंड इट्स अ वेरी स्वीट लेवल above which you can see two targets will be there 35,820 and 35,969. So I will just write it down. The make or break level, this is the make or break level, which is 35,532. On the higher side you have 35,820 and second target will be 35,970. 35,970. Two targets are there on the upside. इसके नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो फ्राइडे का जो बॉटम है दैट शुड बी टेस्टेड. सो 35,120 दैट शुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड दैट इज वेयर द मैक्सिमम सपोर्ट इज देयर. So it will definitely need lot of bearishness to break past this level, and if it breaks, only in that case आपको 34,800 का level देखने को मिलेगा, or else it will bounce back again very strongly. So that's all from my side, guys, on the Nifty and Bank Nifty front. So with this, I wind up the analysis on the index part. I will quickly have a look at the
MCX मार्केट, क्योंकि MCX मार्केट में लास्ट वीक बहुत ही अच्छा था. वी हैड फैंटास्टिक ट्रेड सेटअप्स इन द गोल्ड. सो गोल्ड में हमने पहले एक शॉर्ट ट्रेड लिया था जो कि बहुत ही फैंटास्टिक वर्क किया था. आई थिंक इट वाज ऑन थर्सडे. यस, सो यू कैन सी दिस वाज द शॉर्ट ट्रेड दैट आई सेंट इन द ग्रुप. इट वाज अ वेरी फास्ट एंड वेरी सॉलिड मूव. फोर्थ, sorry, I think 3rd of June को ये short trade था and it was a 1,000 point decline. And on Friday I gave the long breakout from this congestion and targets एकदम यही targets थे. Targets भी इसमें complete हो गए थे. We have exited. So in 2 days we have covered almost 1,400 points in the gold, and all these things were shared with the student in the Telegram group. Now on gold I still expect you know it's a 50-50 scenario, to be honest. So one thing we can say with confidence is that till we do not cross the 49,500 zone, till we do not cross the 49,500 zone on daily closing basis, uh, gold will be under some range bound movement. तो गोल्ड में अगर मैं एक ब्रॉडली अगर आपको एक लेवल दूं कि क्या रेंज में हम गोल्ड को देख रहे हैं, सो गोल्ड विल ट्रेड in the range of say 49,500 on MCX on the higher side, and you have your 48,400 on the lower side. So round about एक 1,000 1100 1200 पॉइंट्स के रेंज में ये गोल्ड फिलहाल मुझे दिख रहा है. ओके, now this resistance is a very significant one. The resistance is a quite significant one. अगर गोल्ड जो है ना 49,500 वगैरह के ऊपर ट्रेड करने लगता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है एक दो दिन ऐसे, तो गोल्ड में एक बड़ा जो है एक ब्रेकआउट मूव भी आएगा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Yeah. So I was saying that if gold starts to negotiate at the 49,500 and 50,000 zone, तो गोल्ड में दोस्तों एक बड़ी ब्रेकआउट, एक बड़ा मूव फिर क्रिएट हो जाएगा. इसीलिए फिलहाल इस 1,000 1200 पॉइंट के हिसाब से आप खेल सकते हैं. ओके, बट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वंस वी स्टार्ट टू ट्रेड अबाउट दिस ट्रेंड लाइन, अगर हम यहाँ पे ट्रेड होने लगे तो ये बुलिश साइन है. इन दैट केस आई विल बिकम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड for entire next quarter, and that will be a very big thing, because अगर गोल्ड में 2021 में 6 महीने की बेरिशनेस के बाद एक अगर 50,000 के ऊपर हम ट्रेड करने वाले, तो इसके इम्प्लीकेशन जो है आपको इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट दोनों जगह पे जो है देखने को मिलेंगे. सो फिलहाल हम इस 1,000 पॉइंट में लॉन्ग शॉट दोनों करेंगे, एंड वंस वी आर अबाउट दिस 49,500 49,800 देन हम पूरी तरीके से लॉन्ग करेंगे. नाउ सिमिलरली हम 48,400 48,200 इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं, ओके, इफ वी स्टार्ट टू गेट एक्सेप्टेड इन द लोअर जोन, तो फिर गोल्ड में एक बड़ी ब्रेकडाउन भी आएगी. ओके, सो इसके ऊपर है ब्रेकआउट एंड इसके नीचे है ब्रेकडाउन. जब तक ये रेंज है वी विल प्ले दिस रेंज, एंड जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में हम प्ले करेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ बिग मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. सिल्वर की अगर बात करें तो 71,550 के आसपास सिल्वर है, एंड सिल्वर में थोड़ा सा एक डाउन मूव की बात जो मैंने कही थी लास्ट वीक में, इफ यू रिमेंबर आई हैड शोन दिस चार्ट ऑफ सिल्वर, और हमने डिस्कस किया था कि 73,000 के नीचे अगर सिल्वर रहता है तो सिल्वर में आपको 69,600 तक की मूव कम से कम देखने को मिल सकती है. सो स्टिल सिल्वर में मेरा व्यू अभी रेंज बाउंड का ही रहेगा. With bearish bias on the higher side, you have 73,000 as a major resistance, and on the lower side, you have 69,000 as a good support. So I would like to place silver in this particular channel. इस तरीके से मैं सिल्वर को प्ले करूंगा, जहां पे ऊपर में 73,000 72,800 एक्सेट्रा, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे with stop loss of, you can say, 1,000 point as a stop loss, and then we will target 69,000. इस तरीके से हम सिल्वर में प्ले करेंगे. ऑलराइट, सो ये एक चीज है. गोल्ड सिल्वर की अपडेट हो चुका है. अब आते हैं क्रूड ऑयल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल में बहुत ही अच्छा वीक रहा है, एंड आई बिलीव
very nice moves were seen in the crude oil market. Now crude oil पे अपडेट देना भी जरूरी है थोड़ा. तो क्रूड ऑयल में हुआ क्या है लास्ट वीक में. सो क्रूड ऑयल में हमने पहले यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट किया ऑन दी हायर साइड. इफ यू रिमेंबर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड मैंने दिया था जो कि नीचे में कवर हो गया. लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट हुआ है. कहां से ब्रेकआउट हुआ है? इट्स वेरी सिंपल, 4920 के ऊपर से ब्रेकआउट हुआ है. सो दिस वाज द ब्रेकआउट जोन एंड अगेन इफ यू सी वी हैव ब्रोकन विद अ गैप. तो अगर आप मेरी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर चुके हैं या अगर आप वीडियोस को रोज सुनते हैं तो आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर गैप से होता है, इट्स अ ब्रेकअवे गैप. Okay, and till that price is not coming below that gap, it will keep traveling on the higher side till it has met its target on the higher side. ठीक है. सो अब क्रूड ऑयल में तेजी का पूरा एक माहौल था इस वीक के लिए एंड क्रूड ऑयल हैज सीन दी एंटायर बुलिशनेस. यहाँ पे फिर हमने जो है लॉन्ग की एडवाइस दी एंड फ्राइडे ऑल्सो आई हैड गिवन लॉन्ग एडवाइस बट फ्राइडे को कोई डिप नहीं आया. सो ये जो लॉन्ग एडवाइस की जोन थी दैट लॉन्ग टारगेट गॉट ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, सो क्रूड ऑयल में अभी भी बुलिशनेस मेंटेन है एंड 5100 शुड बी सीन वेरी वेरी इजीली गोइंग फॉरवर्ड. क्रूड ऑयल ट्रेडर्स को दो बातों का ध्यान रखना है. नंबर वन, यू हैव इलेक्शन कमिंग अप इन दी ईरान. ठीक है, सो ईरान में जो इलेक्शंस है एंड कॉमिक्स पे WTI क्रूड इज बुलिश बट ब्रेंट क्रूड में काफी मैसिव रेजिस्टेंस है. तो इस डाइकोटमी को ध्यान में रखते हुए और ईरान के इवेंट को ध्यान में रखते हुए what can happen is crude oil can keep going up for next 10 days or so till these levels are met and after that we will review कि इसमें अब bullishness continue होना है कि नहीं होना है. क्योंकि अगर ये यहाँ से अराउंड 5200 के आसपास से यहाँ से अगर ये कमजोर पड़ना शुरू होता है, by that time Iranian elections would have also been completed. So we will turn bearish, हम bearish हो जाएंगे and then you can see a very severe decline in the crude oil coming in this particular style. Okay, now अगला जो महीना है जुलाई, ये महीना बहुत क्रूशियल है. इनफैक्ट नेक्स्ट 2 months आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर क्रूड ऑयल. व्हाई? बिकॉज सी इफ दिस डाउनफॉल डजंट कम, व्हाट विल हैपन इज कि अगर WTI क्रूड ऑयल बुलिश रहेगा तो धीरे धीरे वो ब्रेंट को भी खींचेगा बुलिश साइड में एंड इफ बोथ the Brent and the WTI both turn bullish, what can happen is क्रूड ऑयल में आपको 5700 बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाएगी. इस तरीके से there can be severe rally in the crude oil market and already commodities as a basket में काफी strong bullishness रही है and most of the commodities have surged very very high, very very high. So that is why 5200 is the level that I will be watching. I will be watching this for next 10 days. 15 जून को इरानियन इलेक्शन है एंड प्राइस एंड टाइम अगर मैं देखूं तो ये भी 15 जून के आसपास आता है. वहां से अगर कमजोरी आई तो हम शॉर्ट साइड में चल जाएंगे एंड देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन द क्रूड ऑयल मार्केट. अगर वहां से वीकनेस नहीं आती है देन आप समझ जाओ कि क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ी तेजी की चांसेस हैं. नाउ every now and then I talk more about how this market is closely resembling the 2008 type of a market purely based on sentiment and euphoria and the commodity cycle and all this thing. अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 2008 के बाजार को आप देखोगे तो उसमें क्रूड ऑयल जो है ये जून में बहुत शार्प एक रैली हुई थी इसमें जो जुलाई 10-15 तारीख तक कुछ चली थी एंड देन क्रूड ऑयल में एक बहुत ही भयानक गिरावट की शुरुआत हुई. ओके, एंड दैट हैपेंड इन जुलाई एंड उसके 1-2 महीने बाद से बाकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट होनी शुरू हो गई. सो जनरली द क्रूड इज द लीडिंग इंडिकेटर आई वुड से. सो दैट इज व्हाई अगर ये ऐसा कुछ करता है यहाँ से गिरावट तो हमको अलर्ट होना बहुत जरूरी है और अगर ये एक तूफानी तेजी करता है तब तो और भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. ओके, सो क्रूड ऑयल में फिलहाल इस वीक के लिए आपका बेस प्राइस हो जाएगा दोस्तों 4980. सो 4970 में लिखता हूँ ये बेस प्राइस है और ऊपर में 5175 ये आपका रेजिस्टेंस है. तो ये 200 पॉइंट में हम इसको प्ले करेंगे. वी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट. बाय ऑन डिप्स की हमारी अप्रोच रहेगी और ऊपर में 5175 का इस वीक का टारगेट होगा एंड बुलिश व्यू नेगेट हो जाएगा अगर हम 4920 के नीचे चले जाएंगे, क्लोज कर देंगे तो बुलिश व्यू नेगेट हो जाएगा.
ठीक है, फिलहाल जिसकी संभावना बहुत ही कम है। ओके, सो दैट्स द अपडेट ऑन द क्रूड ऑयल मार्केट। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो आपको याद होगा मैंने बुलिशनेस इसमें कहा था कि नेचुरल गैस में 228 236 ये जो लेवल्स हैं ये आने वाले हैं, एंड नेचुरल गैस में आपको तेजी दिखाई दे रही है, 226 की प्राइस इसमें आ चुकी है। नाउ नेचुरल गैस को अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर हम अगर की बात क्या है, अगर मगर कुछ नहीं है, ये जो है ऊपर ही जाने वाला है, एंड इफ यू सी अ गैप अप ऑन मंडे देन नेचुरल गैस विल शूट वे हायर, इट कैन इवन शूट टुवर्ड्स 257, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे द वे इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, नेचुरल गैस मार्केट में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। अगर नेचुरल गैस आपका लगभग मैं कहूँगा 212 के नीचे नहीं जाता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो नेचुरल गैस में ये जो आप देख रहे हो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न विद अ बुल फ्लैग हियर, इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट बुलिश चार्ट पैटर्न यू कैन एवर फाइंड, एंड ये अगर ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो मैं सीधे टारगेट आपको देता हूँ 260 का, सीधी बात है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी देर इज अ ट्रेंड लाइन स्क्वीज हैपनिंग। ओके, सो वेरी लाइकली क्या 99.99% नेचुरल गैस में ब्लास्ट होने वाला है, और आपको जो ये हाइज हमने बनाए थे नवंबर में, वेरी लाइकली वी आर गोइंग टुवर्ड्स 260 मार्केट, सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप शॉर्टर हैं, हम इसमें लॉन्ग ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि नेचुरल गैस में तेजी का माहौल है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में द एनर्जी मार्केट्स आर हिटिंग अप, so you have to be bullish on these markets. So holding 212, I'm very bullish on natural gas. Target is, no if no but, only 257 260, these are the targets on the natural gas market. कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में लास्ट वीक बहुत ही बम्पर डिक्लाइन एक देखने को मिली, बट स्टिल इट इज डिफेंडिंग द रिसेंट बॉटम विच इज द प्रीवियस हाइज। सो ये जो स्ट्रक्चर है काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, वेरी नाइस। द ओनली थिंग इज दैट द वे इट स्टार्टेड टू फॉल, वी हैव टू बी क्रूशियल, क्योंकि रिवर्सल जब भी होगा ना मार्केट में, ये ऐसा ही होता है कि एक लोअर हाई फॉर्मेशन होता है, एंड देन इट ब्रेक्स द सपोर्ट लाइक दिस, एंड देन इट इज द एंड। तो यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन है, बट इट इज येट टू ब्रेक दिस जोन, सो वी कैन से दैट कॉपर में आपका लास्ट सपोर्ट पे खड़ा है कॉपर, एंड holding I would say 726, that is the most important level in copper. Holding 726, you can revisit I would say 755. So holding 726, you can revisit 755 at least. I think ये बनता है कॉपर में, अभी 743 है, तो ये एक ट्रेड सेटअप है। अगर आपको नीचे में कॉपर मिलता है, सपोज यू गेट इट नियर वेरी क्लोज टू द स्टॉप लॉस, अगर आपको 735 या 733 वगैरह मिलता है, तो आप एक 726 को ध्यान में रखिए, एंड विद दिस एज अ स्टॉप लॉस यू कैन प्ले फॉर 755, मे बी 770 भी एक बार शूट कर सकता है। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छा लॉन्ग ट्रेड वही है जो क्लोजिंग ऊपर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज आपने 730 में बाई किया एंड इट इज क्लोजिंग नियर 728 एंड यू ऑलरेडी नो दैट 726 इज द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि ये बहुत ही रिस्की लॉन्ग ट्रेड है, बिकॉज अगर इसमें स्ट्रेंथ होता तो ये नीचे क्यों क्लोज होता, व्हाई इट इज क्लोजिंग नियर द स्टॉप लॉस, अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो ये सब थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वी कैन नॉट बी देयर ऑन यूट्यूब टू एडवाइस। फाइन, सो कॉपर में ये सिनेरियो है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर अप मूव इन द कॉपर मार्केट। निकल में 1300 का सपोर्ट है, 1360 इज द रेजिस्टेंस, ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए निकल में। मार्केट थोड़ा डेंजर है निकल का, क्योंकि न्यूज डोमिनेटेड मार्केट है, सो इसीलिए मैं उसमें अवॉइड करता हूँ कोई चीज रिकमेंड करना इस लेवल पे। जिंक जो है 236 है, जिंक में एक लास्ट अप मूव आ सकता है, आफ्टर दैट जिंक एंड लेड बोथ आर गोइंग टू डिक्लाइन। ठीक है, सो दैट्स ऑल on the commodities market. So in last 15 minutes I have explained you almost all the commodities, and I have already explained you the Nifty and Bank Nifty trading strategy for tomorrow and for this week. So अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में ही सारा एक्शन है। देखा जाए तो इंडेक्स में कुछ है नहीं, एंड स्टॉक्स में ही मेजर एक्शन हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग फॉर the stock section. So दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, let me just tell you that you can promote our channel
by pressing the like button, by sharing it, by sharing the live stream, by subscribing to our channel, so that if I'm coming live during the market hours, that time also you can get the notification. You can connect with me on Instagram and Facebook as well. So what are the stock queries that we are going to discuss tonight? Manali Petro, Oro Pharma, BHEL, Maruti. Okay. Tata Motors. Let me start. सी टाटा मोटर्स में फ्राइडे के दिन जो है एक एक्शन की शुरुआत हुई है फाइनली, यू नो. So if you are a long trader in Tata Motors, try to look for 346. 346 के लेवल को इस पे आप ध्यान दीजिए. टाटा मोटर्स बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद इनफैक्ट एक इसमें बुलिशनेस आ रहा है. सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड टू मी, एंड 315 शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. जब तक 315 इंटैक्ट है, ये प्राइस स्ट्रक्चर जब तक इंटैक्ट है, टाटा मोटर्स में आपको ऊपर की चाल देखने को मिलेगी. नाउ टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो अपसाइड में ना फ्लॉप शो भी काफ़ी करता है, और रिसेंटली अगर आप पास्ट में देखेंगे तो काफ़ी फ्लॉप शो कर चुका है. सो इसीलिए आपको ऊपर में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल से 346 यानी एक और 12 पॉइंट की अपमूव इसमें आ जाएगी. उसके ऊपर 346 को क्रॉस करेगा तो ही फिर नए टारगेट्स आएंगे. Okay, so focus on 346 first, and if it is closing above 346 like as in 348 350, तो फिर न्यू हाइज के दरवाजे खुल जाएंगे, और इसका ऊपर में टारगेट है 377 का. नीचे में आप कहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से 316 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए. ओके. जाइडस वेलनेस, नेक्स्ट क्वेरी है जाइडस पे. जाइडस एज ऑफ नाउ इज गोइंग फॉर द स्क्वीज. स्क्वीज का मतलब ये है कि इसमें जो है एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट काफ़ी जल्दी आने वाला है. फिलहाल स्टॉक एब्सोल्युटली फ्लैट है, मतलब कोई डायरेक्शन का गेज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट. व्हाट आई कैन से इज दैट ओवरऑल, इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक इट इज़ गुड. 1942 अ लव स्टोरी नहीं, 1942 का जो प्राइस है ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक यू कैन होल्ड दिस स्टॉक टिल 1942 इज नॉट breaking, and then it should break on the higher side. Okay, volatility squeeze हो रहा है, so बहुत जल्दी इसमें मूव आएगा, एक दो हफ्तों में आपको इसमें देखने को मिलेगा. 1942 का लेवल जो है इसको ध्यान में रखना है. ICICI Prudential. ICICI Prudential is the next query. So ICICI Prudential trading at 576 and breaking towards new highs, breaking towards the channel, right? So ICICI Bank जो है again very bullish counter, and I would suggest see this counter is already at a massive resistance, तो यहाँ पे सेफ्टी देखना चाहिए. तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दो. लगभग हम 604 जो बॉलिंजर बैंड का पीक बना था, ओके, यहाँ तक ये जा सकता है. सो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देंगे. 578 है राउंड नंबर, 600 का रेजिस्टेंस खुद ही ऐड करेगा. सो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देंगे यहाँ पे. HCL Tech. ओके, सो मेनी पीपल हैव बॉट इनटू HCL Tech. सी भारत का जो रिटेल ट्रेडर है ये ITC और HCL में बुरी तरीके से फंस चुका है. अब HCL Tech में क्या सिचुएशन है कि यस ये बुलिश है, इसमें हमने भी तेजी के लिए एडवाइस दिया था 926 के लेवल पे, and since then it moved towards 956, but nothing much is happening. Okay, now what I can tell you in this stock is that you have a good bottom in place near 890. So if you are a long trader in HCL Tech, the price is 936. अनफॉर्चुनेटली आपके पास यही एक स्टॉप लॉस है और कोई स्टॉप लॉस नहीं है. तो अगर आप बहुत ऊपर के लेवल्स पे आपने बाय किया है तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये 930 कल गैप डाउन करता है तो आप एक बार के लिए निकल जाओ, देन लेट इट ड्रॉप एंड ट्राई टू बाय एट लोअर लेवल्स, सो दैट you do not get trapped in the long trade, and you get a lower price to again buy back with small stop loss. ठीक है. सो HCL Tech में जो है अभी भी ये बुलिशनेस मेंटेन होगा. स्टॉप लॉस आपका 890 के आसपास है, एंड वंस वी स्टार्ट टू गो लिटिल हायर अबाउट 950 एक्सेट्रा, तो इसमें बुलिशनेस आ जाएगा. 1000 आपका टारगेट होना चाहिए HCL Tech में.
So that's the update in HCL Tech. RBL Bank. See, Ratnakar, RBL, all these, stay away from these counters. They can rally, no doubt. But if you are a new trader in market, stay away from these, क्योंकि जब क्रैश होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा. Now रत्नाकर बैंक में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मेरा परमा बेयर काउंटर है एंड द मैक्स दैट इट कैन गो इज अराउंड 250. तो स्टॉक अभी 224 तक गया भी था एंड द मैक्स इट कैन गो इज 245 250. दैट्स ऑल. स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है, 206 को एक अच्छा सपोर्ट है एंड होल्डिंग 206 इट कैन try to go near the 240 250 level. If you are a long trader in this, which you should not be, but if you are a long trader in this, then do not keep it once the 205 or 204 is taken out. ये आपका मैक्सिमम बफर होना चाहिए. 205 204 इसके नीचे अगर जाता है तो इट कैन बी रियली डेंजरस. ये वैसे भी डेंजरस काउंटर्स हैं. न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर दिस वीक तो कोई नहीं है बॉस. इस वीक में तो मेरे पास कोई सेफ वाले कोई स्टॉक नहीं. मैं देखो, मैं जब रेकमेंड करता हूँ तो मैं सेफ ही करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ. या जिसमें कुछ वैल्यू हो, ओके, जिसमें कुछ बात हो, समझ रहे हो ना. सो देयर इज नो न्यू इन्वेस्टमेंट. आईजीएल ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड है, सो 570 and 620 these are the two targets and stop loss is 500 495. ये आईजीएल पे स्टॉप लॉस है. ICICI Bank, next stock है ICICI Bank. So ICICI Bank is trading, taking resistance at the very simple level of the previous highs near the 660s. Now ICICI Bank में देखो दिलचस्प क्या हुआ है. दिलचस्प ये हुआ है कि पिछले 2 हफ्तों से अगर आप वीकली कैंडल देखोगे इसका, तो ICICI Bank में you have seen a bearish pin bar forming, but there is no follow through. ऑलराइट. सो आईसीआईसीआई बैंक में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 637 636 जो कि रोल ओवर प्राइस के काफी नजदीक है, ये आपका काफी सिग्निफिकेंट लेवल है. तो अगर हम इसके नीचे नहीं जाते हैं तो व्हाट कैन हैपन इज आईसीआईसीआई बैंक वापस से ऊपर आ जाएगा एंड इट कैन गो टुवर्ड्स 667. तो ये एक 30 पॉइंट की अपमूव लगा सकता है. सो फॉर आईसीआईसीआई बैंक टू बिकम बेरिश, इट इज इंपेरेटिव that it should break below the 636 635 levels on a closing basis, or else again it can move on the higher side. अगर एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस हम लगाएं तो आईसीआईसीआई बैंक में हम ये देखते हैं कि इसमें एक बेरिशनेस की शुरुआत होने वाली है, ओके. एंड प्राइस वाइज द लास्ट सपोर्ट एग्जिस्ट इज 630, जहां से ब्रेकआउट हुआ था. तो अगर ये ब्रेक करता है प्राइस वाइज तो अच्छी खासी फिर गिरावट इसमें हमको देखने को मिलेगी. एंड मिनिमम टारगेट में इसमें 577 का रखूंगा नेक्स्ट फ्यू वीक्स के होराइजन पे. बट इफ वी डू नॉट ब्रेक देन व्हाट विल हैपन इज कि ये न्यू हाइस पे चला जाएगा. तो कैसे आप ट्रेड करोगे? देखो बहुत सिंपल है. आप 635 का एक रेफरेंस लेवल लेके चलो, ठीक है. जब तक उसके नीचे नहीं जाता है it can bounce back again. ट्रेड आइडियाज मैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ पब्लिक को, क्योंकि इट इज बेटर सेफ टू बी सॉरी. तो थोड़ा बाजार से दूर रहना ही सही है. अशोक लेलैंड जो है आपका, अशोक लेलैंड तो अच्छा चल रहा है, 128 पे ब्रेकआउट दे रहा है. सो अशोक लेलैंड इज ट्रेडिंग गुड and I think it is in safe hands. 122 should be your trailing stop loss, and till 122 is not taken out, stock is bullish and it can go towards the 144 mark price. So just dial, next query है just dial का, and just dial में बहुत ही अच्छा एक इंट्राडे स्ट्रक्चर है. एंड आई थिंक जस्ट डायल में जब तक 920 ब्रेक नहीं होता है यू कैन चूज टू रिमेन लॉन्ग. एंड 960 के ऊपर ब्रेकआउट अगर देगा तो ये आपको आराम से 1050 के लेवल्स को ये दिखा सकता है. तो शॉर्ट टर्म में 920 का आपका आखिरी स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन दी लॉन्ग साइड. अगर आपको थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको 900 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए. अगला स्टॉक है पीवीआर. व्हाट्स हैपनिंग इन पीवीआर जो है 1385 पे आ चुका है. सो ठीक है, इसको मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ये कम से कम 1320 आएगा
एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो अभी तो इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। आई थिंक कुछ लोग बेमतलब का शॉर्ट कर देते हैं बिना देखे, इसलिए कहता हूँ ट्रेनिंग अटेंड करो या तो खुद से टेक्निकल सीखो। सो फिलहाल जो पीवीआर है, पीवीआर इसमें तेजी है। एंड पीवीआर जब तक, पीवीआर देखो अभी तो पीवीआर में वीकनेस नहीं है, पीवीआर हो सकता है 1500 तक भी ये चलते चला जाए। ओके, सो पीवीआर में कोई भी वीकनेस अभी नहीं है। टाटा एलेक्सी, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी 3568 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में अभी कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी नो volatility काफी shrink हो चुकी है। If you are a long trader in this, then keep a stop loss of 3,377, and if it doesn't break below 3,500 in next week, then I think it will blast very very strongly। इसमें जो है आपको 4200 4400 का लेवल जो है आराम से आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेरी है जिंदल स्टील एंड पावर। दोस्तों चैनल को प्रमोट कर सकते हैं लाइक का बटन दबा के, शेयर और सब्सक्राइब करके, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर जो है आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव वीक, लास्ट वीक हमने इसमें एक बहुत ही अच्छा वीकली रिवर्सल देखा। ना थोड़े दिन पहले भी मैंने जिंदल स्टील एंड पावर पे एक चीज़ कहा था कि अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आपको 375 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी तक वो स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड है। Now, if you check this weekly chart, what does it says? It says that you are at a good support. Okay, you are at a good support, and this is an inside bar. तो इस हफ्ते इसमें एक बड़ा मूव आएगा, इस हफ्ते इसमें एक बड़ा मूव आएगा। एंड जब तक 375 ब्रेक नहीं होता आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में आपको हायर टारगेट्स नियर 460 वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 375 के नीचे इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। एंड यू एग्जिट वंस, बाद का फिर बाद में देखा जाएगा। 375 के नीचे स्टॉक जो है काफी बेरिश है। मनाली पेट्रो, नेक्स्ट स्टॉक है मनाली पेट्रो। मनाली पेट्रो ट्रेडिंग एट 81 एंड बहुत ही टाइट रेंज में है ये स्टॉक। तो अगर अप ट्रेंड में रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइम करेक्शन है, तो इसका मतलब है कि वंडरफुल, इट इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक स्टॉक इज़ रियली अमेजिंग। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको तेजी कंटिन्यू करना चाहिए। इट इज़ मूविंग इन अ वेरी स्टेप बाय स्टेप मैनर। 72 का आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला टारगेट जो है कम से कम 100 का इसमें होगा। प्राज इंडस्ट्रीज, आई डोंट नो व्हाट इज द न्यूज़ इन प्राज इंडस्ट्रीज। किसने लिखा है कि कोई न्यूज़ है इसमें, आई डोंट नो। बट मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ तो टेक्निकल्स के हिसाब से प्राज इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी हेल्दी है, कोई कंप्लेन नहीं है। स्टॉक इज क्वाइट बुलिश। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको जो है 330 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। एंड देन इट कैन कंसोलिडेट फॉर फ्यू डेज, बट इवेंचुअली इट शुड गो टुवर्ड्स 420 450। सो 328 को आप रखिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। वी विल सी आफ्टर फ्यू डेज कि क्या होता है। 328 जो है ये आपका क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड होना चाहिए। एंड देन 420 एंड 450 शुड कम इन दिस स्टॉक। अगला क्वेरी है सन फार्मा। सो सन फार्मा में अच्छी गिरावट हुई है लास्ट वीक, एंड देन सम सपोर्ट्स आर बीइंग टेकन। तो सन फार्मा का मैं एक पिचफॉर्क चार्ट ओपन करता हूँ। नाउ व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट यू हैव मेड अ गुड बॉटम ओवर हियर। सो सन फार्मा में एक चीज हम कर सकते हैं, देखिए कि इसको अब कोई गिरावट आती है, अब कोई गिरावट आती है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, आप इसको 660 वगैरह यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बट इसमें स्टॉप लॉस कंपलसरी है। इसमें आपका 640 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। 640 इज द लास्ट स्टॉप लॉस एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। यू कैन बाय दी डिप, कोई भी डिप आती है इसमें आप बाय कर सकते हैं। 640 का आपका स्टॉप लॉस है। अगला टारगेट जो है दैट विल बी 763 इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो ये स्टॉक को मैं कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, एंड इट मे टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। हो सकता है ट्रायंगल पैटर्न बनाए, जैसे भी बिटकॉइन में एक ट्रायंगल है, इस तरीके से हो सकता है 5-10 दिन तो थोड़ा साइडवेज करे, बट ये ट्रेजेक्टरी है। तो जो लोग कैश मार्केट में प्ले करेंगे उनके लिए आई थिंक सुटेबल होगा। एफएनओ ट्रेडर्स आपका हाय तौबा मचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी है गुजरात गैस। सो गुजरात गैस में क्या है दोस्तों, 590 का लेवल है एंड मैसिव ब्रेकआउट हुआ है। सो
क्या आपको याद है कि इस स्टॉक पे मैं कितना बुलिश था? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ अ रॉकेट मूव, एंड मैं रिपीट नहीं करूंगा, पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूँ. सो फैंटेस्टिक. सो आप देखिए 514 520 के स्तर पे हमने काफ़ी दिन इसको डिस्कस किया था, एंड आई टोल्ड यू कि ये स्टॉक अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको बम्पर फटेगा. एंड व्हाट अ मूव. सो स्टॉक में अभी बहुत जान बाकी है. 640 720 ये सब टारगेट्स हैं. सो जिनको भी प्रॉफिट बुकिंग करना है, आप थोड़ा और ऊपर जाते ही आप इसमें कर सकते हो, या ट्रेल करो. ट्रेल करने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन. सो सो ट्रेड कीजिए. मेरे ख्याल से 530 एक अच्छा ट्रेडिंग लेवल है, एंड अपसाइड में 620 से 650 तो एक आना ही चाहिए. ठीक है. सो ये एक चीज़ है. BHEL पे पूरी दुनिया अटकी है, तो भाई BHEL की पूरी दुनिया है दीवानी, और मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था 55 पे. अभी लास्ट वीक में मैंने हर दिन आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया. हर दिन मैंने बोला था कि नहीं बोला था? टेल मी कि ये स्टॉक एनी डे इट विल स्टार्ट द अप मूव. आपको नीचे में जो भी भाव पे मिलता है 71 72 उस पे बाय कर लो, एंड 66 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है. टारगेट है 85 का. And Friday we have saw the initiation. So let us see. Still view is same. 66 is the stop loss. 85 is the target. Tata Steel. टाटा स्टील. ओके, सी टाटा स्टील में इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. टाटा स्टील बेसिकली कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कुछ इस तरीके का खेल ये खेलना चाहता है. सो कैसे डील करेंगे इससे? देखो, नंबर वन एक चीज़ तो आप समझो कि जो स्टॉक की एक स्वीट मूवमेंट होती है ना, जब वो चल रहा होता है तो उसमें पब्लिक खेलता नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. और जब उसका कॉम्प्लिकेटेड फेज आ जाता है तब सबको खेलना होता है. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है फाइनेंशियल मार्केट में. सो यहाँ पे रिस्की वाला जोन है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप यही कर सकते हैं कि जो रिसेंट प्राइस पिवोट है, विच इज़ आई थिंक नियर दी 1075 लेवल, जब तक वो होल्ड है आप इसको लॉन्ग साइड में प्ले कर सकते हो कुछ इस तरीके से. ओके, दैट्स ऑल आई कैन से. 1070 is the last support. If you are playing on the long side, be careful, number one, and try to buy as close to the stop loss as possible. Number two. Number three, जो इसका अनफिल्ड गैप है 1162 पे, ये आपका इसमें टारगेट होगा. And number four, these are the stocks which are dangerous at this stage of market. Rest it is your choice. Now if you look at the weekly chart, बहुत ही अच्छा इनसाइड बार बना है. तो अगर तेजी इसमें इंटैक्ट है तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, ये 1085 के नीचे नहीं जाएगा. जो वीकली कैंडल है उसके नीचे ये नहीं जाएगा. सो इट विल डिफेंड इटसेल्फ, एंड इन दिस मैनर इट विल कर्व on the higher side. Try to understand, try to visualize the flow of price. So if bulls are in control, they will defend the downside, and then they will shoot higher. If bulls are not in control, ये ऐसे 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 फिर ऐसे शेप ले लेगा. अंडरस्टैंडिंग. चलिए, सो लेट अस मूव टू द अदर स्टॉक. IEX की तरफ चलते हैं. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IES. सो दोस्तों, लाइक का बटन आप नहीं दबा रहे हैं तो कृपया डिसलाइक का बटन जो है होलसेल में दबा दो. कम से कम 1000 10,000 डिसलाइक दबा दो. ओके, IEX, ये स्टॉक फिलहाल जो है पानी पी रहा है. सो लेट इट ड्रिंक दी वाटर, एंड कुछ नहीं, नो टेंशन, बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट स्टॉक है औरो फार्मा. काफ़ी देर से औरो फार्मा पे क्वेरी है. सो औरो फार्मा हमारा लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश काउंटर है. सो इफ़ यू आर अ बायर from a long term perspective, then you can continue to hold, no problem. Okay, and some downside will be seen. अभी मैंने 3 दिन पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैंने क्या कहा था कि इसमें एक अपमूव अगर आएगा 990 पे तो एक बार निकल जाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये वीक है एंड इट कैन डिक्लाइन फर्दर टुवर्ड्स 938 940. सो सिमिलर चीज़ यहाँ पे है फिलहाल. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, अ स्टॉक विच इज गुड इन अ लॉन्ग टर्म मे बी बैड इन शॉर्ट टर्म. क्यों? क्योंकि मान लो इस स्टॉक का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हुआ है तो शॉर्ट टर्म में तो ये ऑलरेडी बहुत ओवरबॉट है.
So it has its own right to come and retest the breakout level and probably then reverse. इसीलिए मैं क्या आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऊपर ऊपर में मत बाय करो भैया, यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर में मत बाय करो, क्योंकि आप लोग टेक्निकली उतने साउंड नहीं हो, मैनेज नहीं कर पाओगे, और आप अच्छे स्टॉक को गलत भाव में बाय करके गलत जगह पे बेच दोगे, ओनली टू सी इट फ्लाइंग विद कलर्स लेटर ऑन। तो इसीलिए दो चीजें करनी चाहिए। नंबर वन, एक तो एफएनओ छोड़ दो और कैश मार्केट में खेलना सीखो। ओके। नंबर टू, वेट फॉर दीज स्टॉक्स टू गिव यू गुड करेक्शन, और स्टॉक की लिस्ट एक बना के रखो। आप एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं बनने वाला है। ओके। सो ऑरो फार्मा में अभी आपको निकल जाना चाहिए लॉन्ग साइड से। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म हो तो कोई टेंशन नहीं है, डोंट एवरेज। हाँ, यहाँ अगर नीचे आता है तो फिर आप एवरेज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जब तक ये 980 को क्रॉस नहीं अप करता, इसमें नीचे का विंडो खुला है, एंड 938 कैन बी दी फर्स्ट टारगेट, एंड 900 कैन बी दी सेकेंड टारगेट। इस स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, इसीलिए मैं इसमें शॉर्ट की कोई सलाह नहीं दूंगा, ये जानते हुए कि प्राइस गिर सकता है, पर शॉर्ट की सलाह मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है मल्टीप्लाई करने का, उसको थोड़े दिनों के शॉर्ट के लिए नहीं प्ले करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रैप में हो जाओगे तो क्या होगा कि आपको शॉर्ट में भी नुकसान होगा, प्लस यू विल मिस द मेगा मूव दैट इज गोइंग टू कम, दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड, एंड यू विल बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड। सो ये बात है। ठीक है, अगला क्वेरी है स्टार। डोंट स्पैम। स्टार की क्वेरी जो है, ओ सो स्टार ने क्या किया है, स्टार ने जो है गेम कर दिया। सो स्टार ने स्टॉप लॉस जो है 770 का हिट करके अगेन इट इज गॉन अप। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो स्टार में जो है अभी स्टॉप लॉस इसमें हिट हो चुका है 770 के आसपास जो है इसमें स्टॉप लॉस मैंने दिया था। सो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बट ये एक मैसेज हमें दे रहा है, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि ये स्टॉक में अभी भी जान है, एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्रेड लाइक दिस, इट विल ट्रेड लाइक दिस, एंड ये जब इससे बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो दैट टाइम यू कैन री एंटर अगेन। फिलहाल यहाँ पे ये इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, एंड देन लेटर ऑन वी विल सी। इसका अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो हमको घूम फिर के ये अच्छे भाव पे ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ हमें लॉस नहीं होगा। वी विल ऑलमोस्ट गेट द सेम रेट, ओके, बट विथ श्योरिटी। एंड नेक्स्ट टाइम पे ये जो है टारगेट्स आपके सेम टारगेट्स रहेंगे, 1075 1100 सेम टारगेट्स इसमें रहेंगे। ठीक है, अगर सपोज आपने एग्जिट नहीं किया है तो आपको 740 तक देखना पड़ सकता है। 740 वहाँ पे इसका 200 डीएमए है, एंड टिल दैट प्राइस इट कैन फॉल। Bharati. See, Bharati is going to trade in a range between 520 and 545। भारती पे अभी मैंने एक दो दिन पहले डिस्कशन किया है, और मैंने ये कहा था कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप इसको कर सकते हो। 527 पे आप लॉन्ग कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 517 515। So you can long in this zone over here, keep a stop loss at 515, and then you should see the levels of 545 and maybe 560 like this, जहाँ पे हम शॉर्ट करने के लिए वेट करेंगे, एंड ओवर देयर if everything looks good we will short, और अगला टारगेट होगा 490 का। So this is the trajectory going forward for Bharti Airtel, and this view will not change till either 515 is taken out or till we reach the 560 mark. IndusInd Bank. See, IndusInd Bank is one of my long-term Burma Bear counter. So इस स्टॉक में हमेशा हम अच्छी रैलीज का वेट करते हैं शॉर्ट करने के लिए। Now, what has happened in this stock? If you look at the weekly chart, it has made a, you can say doji, hanging man, whatever you want to call it, but it has made an exhaustion. It has made an exhaustion. Now, if you are a long trader in IndusInd Bank, God bless you. एंड मेरी तो ये सलाह होगी कि स्टॉक में अब तेजी ना खिली जाए। तेजी अगर आई भी तो 1090 से ज़्यादा की तेजी नहीं है, जो कि लगभग 80 पॉइंट है। सो यानी 8% की अपमूव कैप्ड है इसकी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डू नॉट गो फॉर द लास्ट माइल,
in this stock because it is a perma bear counter. Eventually what will happen is, you see, अगर हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे 1100 को या 1090 को, तो क्या होगा कि जो पूरी मेहनत है आपकी पिछले 12-13 महीने की, ये पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी. एंड अगेन वी आर गोइंग लाइक दिस. Now this IndusInd Bank, be very careful, and lot of litigations are going to come against this bank. You will hear a lot of news in coming weeks and coming months. That time आपको मेरी बातें ध्यान आएंगी. Tata Investment. I'm telling you about few stocks: IndusInd Bank, Indiabulls Housing Finance, and there is one Bombay-based real estate company, Ajmera. ये तीनों से बच के रहना. ये तीनों पे बहुत लिटिगेशंस आने वाले हैं फ्यूचर में. जुलाई के बाद आएंगे. ओके, टाटा इन्वेस्टमेंट तेजी का काउंटर है. 1035 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए. मेरे ख्याल से न्यू हाई आएगा स्टॉक में 1180 इज गोइंग टू कम. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चार्ट एंड यू हैव गुड पिक फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन. वेरी वेरी नाइस. So worth holding. 1050, 1030, this should be your trailing stop loss, and what a nice breakout. Excellent. ओके, सो न्यू हाइस पे इसको हम बुकआउट करेंगे. राउंडिंग टॉप के आसार हैं, राउंडिंग टॉप के आसार हैं, तो यानी अगले न्यू हाई पे खाली कर देना है इसको. ठीक है. वैसे भी देखो, नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉफिट बुकिंग. मिस्टर ट्यूबर, डू नॉट स्पैम, प्लीज स्पैम मत करिए, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा. अगर आपने लगातार 10 मैसेज भेजे तो आप ब्लॉक हो जाओगे. इंडिया मार्ट. सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द 1 आवर टाइम फ्रेम. 1 घंटा 15 मिनट हो रहा है लाइव स्ट्रीम को. सो आई विल हैव टू वाइंड अप. एक बार देखते हैं कि इंडिया मार्ट में क्या सिचुएशन है. देखो, इंडिया मार्ट, इफ़ यू रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, यस, इसका चार्ट भी ड्रॉ किया था मैंने. आई थिंक 1 महीने पहले शायद ये स्टॉक मैंने लिया था, और मैंने कहा था उस समय ये लगभग तेजी के ही मूड में था. इट वॉज समवेयर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वॉज इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी. और मैंने कहा था कि देखो, ये बेरिश काउंटर है, इस समय बहुत बुलिश लग रहा है, बट ये स्टॉक में करेक्शन आएगा. एंड सिंस देन, सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स, इट इज गोइंग डाउन. इंडिया मार्ट में एक और गिरावट आनी चाहिए. ये स्टॉक में 6200 का ही एक सपोर्ट है, एंड होल्डिंग दैट सपोर्ट, इट शुड बाउंस. बहुत ही मुश्किल है. फिलहाल तो नीचे ही दिख रहा है, एंड लेट अस सी, 6200 का ही आपका सपोर्ट है इस स्टॉक में. लुपिन. सी, लुपिन हैज बीन डूइंग गुड कंपैरेटिवली, एंड बट अब ये होगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग अब आएगा. सो द अदर स्टॉक्स विल गेट चांस, लाइक सन फार्मा और एंड ऑल दिस गाइस. सो लुपिन में मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग अभी आप कर सकते हो, या फिर आपको ट्रेल करना होगा 1190 पे. 1190 पे आपको ट्रेल करना होगा. 1190 पे आपको ट्रेल करना होगा. नेक्स्ट क्वेरी है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आई हैव सीन दिस स्टॉक. आज ग्रुप में भी मैंने यही सजेस्ट किया कि सिट टाइट एंड एंजॉय. सो इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ. 120 का स्टॉप लॉस लगा दो, एंड जस्ट वेट फॉर द राइड टू 156. 156 जो इसका गैप था, ये यहाँ पे आएगा. ठीक है. सो 120 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है. पेट्रोनेट LNG. So I'm winding up. I will wind up in few minutes. पेट्रोनेट LNG अच्छी स्टॉक है. लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था कि हम इसमें बुलिश हैं, एंड थोड़ा सा अपमूव इसमें देखने को मिला है. 230 ये हमारा सपोर्ट है. 230 जब तक प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग साइड में बने रहेंगे. टारगेट्स क्या है? 265 एंड 280. दीज आर दी टारगेट्स. 265 के आसपास आता है तो फिर हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग साइड में आ जाएंगे. ठीक है. ओवरऑल ठीक है. ओवरऑल इट्स अ गुड चार्ट, एंड 230, 228 शुड बी योर लास्ट स्टॉप लॉस. ठीक है. लास्ट आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए. TCS की बात करते हैं तो TCS में भी लॉन्ग ट्रेड बता ही चुका हूँ. रोज रोज वही क्वेरी आप पूछते हो. सो सेम व्यू है. तेजी है बॉस, बाय करो, एंजॉय करो, एंड 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखो. एंड बुल फ्लैग फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी ब्रेकआउट करेगा. 3400 और 3600 का इसका जो है आपका टारगेट है. नेक्स्ट स्टॉक है GEPIL. व्हाट इज दिस? अच्छा, GE पावर इंडिया लिमिटेड.
सो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। एंड जीई पावर जो है इट्स अ बुलिश काउंटर, 344 344 शुड कम इन दिस स्टॉक एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 274, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 274। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया। आई थिंक लास्ट वीक शायद ये स्टॉक हाँ लिया है मैंने। ग्रैन्यूल्स इंडिया टेकन, oh yes, I remember. Why I remember? Because again you can see volatility contraction. आपको याद है ये स्टॉक पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि कैसे प्राइस यहीं पे कंप्लीट हो चुका है और ये जो 10 दिन का करेक्शन है ये टाइम करेक्शन है, विच मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और स्टॉक को बाउंस करना चाहिए एंड यही चीज़ हुआ है। सो वेरी नाइस, वेरी गुड। आप इसमें जो है 300 का स्टॉप लॉस रखिए एंड वेट फॉर योर टारगेट्स टू गेट कंप्लीटेड। पहला टारगेट है 345, दूसरा टारगेट है ऑल टाइम हाई नियर 375। रिलायंस, रिलायंस पे क्या कहा है मैंने कि जो 2250 है यहाँ से इसमें करेक्शन आना चाहिए एंड रिलायंस में हाई क्या बना है एग्जैक्टली 2250। सो रिलायंस में अब 2250 के ऊपर जब चलेगा तो बम्पर मूव होगा और सीधे न्यू हाई जाएगा, उसके पहले नहीं रुकेगा। ठीक है, सो अभी ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है एंड दैट इज़ वाई इट विल रिमेन इन अ रेंज बाउंड आई बिलीव। सो जो लॉन्ग साइड में आपने जो मैंने जब एडवाइस किया था आपको 1800 1900 के रेंज में, उनको 300 पॉइंट का प्रॉफिट है, आपको बुक कर लेना चाहिए। और फिलहाल अगली गिरावट आएगी तो बाय बैक वापस से कर सकते हैं। 2250 के ऊपर जो है अगेन फ्रेश मोमेंटम आएगा। ओके, लास्ट स्टॉक फॉर द डे हेरिटेज फूड्स, हेरिटेज फूड्स। ओके, हेरिटेज फूड जो है 400 पे चल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है, एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस। मंथली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे सब देखो, जब सब कुछ अच्छा लगे ना तो थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए बाजार में। सो फिलहाल इस स्टॉक में मैं ये कहूँगा कि स्कोप अच्छा है। ओके, क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक किया है वेरी कन्विंसिंगली। सो ठीक है, आई थिंक 440 तक तो ये जाएगा, तो 440 पे जो है ना आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है, 440 पे यस डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरा है बट इट इज़ ऑल पेड, इट इज़ नॉट फ्री। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करता है उन्हीं को हम अपडेट, उन्हीं को हम सॉरी ऐड करते हैं। सो अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग का कोई प्लान नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा, दैट टाइम यू कैन ज्वाइन। लास्ट स्टॉक ले लेते हैं, टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर काफ़ी देर से पूछा जा रहा है। सो टाटा पावर देखो 114 का टारगेट है एंड बट एक चीज ध्यान रखना है, देखो इस वीक में ये टारगेट आ जाना चाहिए टाटा पावर में, 114 का लेवल हिट हो जाना चाहिए। 103 का स्टॉप लॉस है, अगर 103 स्टॉप लॉस हिट तो फिर सोचना नहीं है। ओके, अगर आप इतना डिसिप्लिन रह सकते हो तो ठीक है, बने रहो एंड 114 इज द टारगेट, निकल जाना अगली बार में, निकल जाना 114 वगैरह पे एग्जिट। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सो गाइस चलिए वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, टू मच यू नो। सो लेट अस वाइंड अप एंड जिनकी क्वेरीज मैं नहीं ले पाया हूँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस लाइव स्ट्रीम के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए आपकी क्वेरीज, कल मैं सबसे पहले लूँगा, दैट इज़ माय एश्योरेंस। एंड कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगता है लाइव स्ट्रीम, क्या फीडबैक है, अच्छा है, ख़राब है, लाइक डिसलाइक हेट सब कुछ एक्सेप्टेड है। ठीक है, so thank you so much for watching and this week is very crucial and wish you all the best for your trading. Take care, good night, jai mata di।